Good morning, everyone. Sure, Prabhat. We'll process it. Don't worry. We'll restore it for you. Don't worry about it. उसको rectify करा देंगे. ठीक है? Good morning. चलो. We discussed the final aspect of federalism, which is fiscal federalism. Basically, फिस्कल फेडरलिज्म का क्या मतलब है? फिस्कल फेडरलिज्म का मतलब है एफिशिएंट और गुड मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंसेस between the center and the states. Then we must understand where are these finances coming from, because fiscal federalism is a byproduct of what is called fiscal policy. Correct? तो ये जो पूरा सिस्टम है फाइनेंसिस का, जो सेंटर और स्टेट्स दोनों के पास होता है, वो क्या है? Where does this all come from? What is the source of finances? We have taxes and duties. We have grants. And we have borrowing. है कि नहीं? अगर मैं सेंटर और स्टेट्स के फाइनेंसिस की बात कर रहा हूं तो तीन बेसिक चीजों की बात कर रहा हूं कि भाई पहला, कौन सा टैक्स किसके पास है और कौन रखेगा, किस में बटेगा. सेम गोज फॉर ड्यूटीज ऑल्सो. सो दिस वुड मीन who's imposing them, who's collecting them, and how is it being distributed. Simple as that. This could also mean direct taxes, indirect taxes, and certain duties on certain things. Now, grants would mean grants coming from center to states because of the unitary nature of our federalism, or grants coming from an international agency to the center or the states, or to the center and from the center to the states. Correct? Now, borrowing would mean domestic borrowing and international borrowing. Correct? Basic इतना ही इकोसिस्टम है. Taxes, grants, and borrowing. Now, these grants can be one time, can be periodic, can be conditional. Correct? So, effectively, fiscal federalism is about figuring out the management of this. Why? So that both center and the states are
फाइनेंशियली प्रूडेंट। हमको यही तो सीखना है। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस का एक हमने नया इकोसिस्टम बनाया है, उसको क्या बोलते हैं? जीएसटी। Whatever taxes have to be distributed between the center and the states. This would be by the Finance Commission of India on the recommendation of the Finance Commission. And this would also be linked to certain grants. We also have the Fiscal Responsibility Budget Management Act, which is supposed to prescribe certain do's and don'ts of finances. बेसिक कहानी तो इतनी है ना, और तो कुछ नहीं है। आर वी क्लियर ऑन दिस? यहां तक समझ आया? पक्का ना? टैक्स, ड्यूटी, सेस, surcharge. Are we familiar with these economic terms? Yes or no? Are we familiar with these economic terms? एक थोड़ा सा मैं रिवाइज करा दूं, ये चलेगा? ठीक ठीक है, मैं बता देता हूं, 2 मिनट लगेंगे। टैक्स क्या होता है? टैक्स इज ए कंपल्सरी पेमेंट that we have to make to the government for general public purposes. इसको आप इनकम टैक्स समझ लो, जीएसटी समझ लो, प्रॉपर्टी टैक्स समझ लो। ये जो टैक्स है ये इवेंचुअली कहां जाता है? जनरल पूल में जाता है, which is your consolidated fund of India or consolidated fund of the states. सारा पैसा इवेंचुअली यहीं आता है, करेक्ट? So tax is a compulsory payment that you have to make to the government for certain general purposes. इसमें कोई डायरेक्ट गिव और टेक नहीं होता, बट आप ये करते हो। ड्यूटी ऑन द अदर हैंड is duty is effectively a type of tax. हम उसको ड्यूटी बोलते हैं, but it's effectively a type of tax. So a duty is nothing but a tax on goods or transactions, generally जिसका प्रोडक्शन से रिलेशन होगा, कोई चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कस्टम्स ड्यूटी जो इंपोर्ट्स पे लगती है, एक्साइज ड्यूटी अब इंडिया में नहीं लगती, अब सब जीएसटी में आने की उसमें है, स्टैम्प ड्यूटी, राइट? सो ड्यूटी इज इफेक्टिवली ए टैक्स ऑन गुड्स एंड ट्रांजैक्शंस. They're often trade or public, or production related. Cess, on the other hand, is an additional levy, an additional charge, an additional payment on a tax or a duty. But cess is for a specific purpose. So health and education cess लगता है आपकी इनकम टैक्स पे। कुछ कंट्रीज में क्लीन एनर्जी सेस भी लगता है। इट इज जनरली केप्ट फॉर अ स्पेसिफिक फंड और फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। इसका जो पैसा होगा वो जनरली खर्च नहीं किया जाएगा। जिस चीज के लिए आपने लोगों से सेस लिया है, आप उसी चीज के लिए इस्तेमाल करो, ठीक है? सरचार्ज ऑन द अदर हैंड इज अ टैक्स ऑन एन एग्जिस्टिंग टैक्स। जनरली आप सरचार्ज जो है एडिशनल रेवेन्यू रेज करने के लिए करते हो। जनरली यू विल चार्ज इट फ्रॉम हायर इनकम स्लैब्स और फ्रॉम सम काइंड ऑफ स्पेशल सिचुएशंस, ठीक है? तो
For example, income tax surcharge on higher income tax payers. Yes, sometimes on corporate tax beyond the threshold you may want to charge something. It is surcharge is also not tied to a specific purpose. आप उसको generally use कर सकते हो. It's generally extra tax on tax. Now यहाँ तक clear है? पक्का समझ आ रहा है? Okay, good. Now, what is the general legal framework of all of this? What is the constitutional framework of all of this? Okay. First things first, अगर हम ड्यूटीज और टैक्सेस की बात कर रहे हैं, the constitution is very clear on certain aspects. पहला, no tax without law, legislative act. ठीक है? Then the constitution very specifically talks about duties and taxes which are on subjects which are mentioned in the union list and the state list. इसका मतलब concurrent list में कोई भी taxation power नहीं है. So जो भी टैक्स लगेगा वो या तो यूनियन लिस्ट पे लगेगा या तो स्टेट लिस्ट पे लगेगा. यहां तक ठीक है? कोई भी टैक्सेशन पावर लगेगी वो या तो यूनियन लिस्ट पे लगेगी या तो स्टेट लिस्ट पे लगेगी. इसको कौन कलेक्ट कर रहा है और कैसे इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, ये पूरा अरेंजमेंट होना चाहिए. राइट? ठीक. अब इसमें कुछ प्रोविजंस हैं, जैसे आर्टिकल 268 which basically says stamp duties which are mentioned in the union list, they are imposed by the union, but they are completely collected and they're completely used by the states. Okay? Stamp duties लगाती सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसको कलेक्ट स्टेट करती है और इस्तेमाल भी स्टेट ही करती है. Then you have आर्टिकल 269. देखो, कुछ ऐसे टैक्सेस होंगे जो उन एक्टिविटीज पे लगेंगे जो इंटरस्टेट ट्रेड ऑन कॉमर्स को इंपैक्ट करेंगे. राइट? एक्टिविटीज जो मल्टीपल स्टेट्स में होती हैं, तो सेंटर इनका टैक्स कलेक्ट करेगा. ऐसा स्टेट्स का ही होगा, लेकिन सेंटर कलेक्ट करेगा और स्टेट्स में बांट देगा. कैसे स्टेट में बांटेगा विल डिपेंड ऑन पार्लियामेंट्री लॉ, अगर हम कुछ बनाते हैं तो. ठीक है? एंड 269A, जिसमें पहले हमारा इंटरस्टेट और इंडायरेक्ट होता था, 269A is about interstate supplies of goods, जिसमें हम जीएसटी और जीएसटी रिलेटेड लॉज की बात करते हैं. यहां तक ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं? पक्का? गुड. आर्टिकल 270 कहता है कि इसके अलावा जो यूनियन टैक्सेस हैं, जैसे इनकम टैक्स हो गया या एक्साइज ड्यूटी हो गया या जो भी, उसको हमें स्टेट्स के साथ शेयर करना है. वो हम कैसे शेयर करेंगे? बाय द रिकमेंडेशंस और एज पर द रिकमेंडेशंस ऑफ द फाइनेंस कमीशन. ठीक है? ये आपको आना चाहिए. सो 270 इज द शेयरिंग ऑफ divisible taxes based on FCI recommendation. अब इसमें दो चीजें याद रखनी है.
पहला, जो भी सेंट्रल सेस है वो डिवाइड नहीं होगा, और दूसरा, जो सेंट्रल जीएसटी है, जो सेंटर का जीएसटी का शेयर है, मैं जीएसटी भी पढ़ाऊंगा क्या होता है, विल बी शेयर्ड एज पर फाइनेंस कमीशन सजेशंस, नॉट जीएसटी काउंसिल फॉर्मूला। ठीक है, जो सेंट्रल जीएसटी का जो शेयर है, जो हमें शेयर करना है स्टेट्स के साथ, दैट विल बी डन एज पर द एफसीआई रिकमेंडेशंस, नॉट एज पर जीएसटी काउंसिल। ठीक है, इसके जीएसटी, जो इंटीग्रेटेड जीएसटी है, जो इंटरस्टेट के लिए लगता है, वो पार्लियामेंट के बेसिस पे करेंगे, एंड पार्लियामेंट जो है वो जीएसटी काउंसिल के बेसिस पे डिवीजन डिसाइड करे। तो ये एक फ्रेमवर्क है, ये बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट फ्रेमवर्क है, इस पे अभी भी बहुत अच्छे से क्लैरिटी दे नहीं रखी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? ब्रॉडली समझ आ रही कि हो क्या रहा है? ब्रॉडली, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं। यस और नो? ठीक, थोड़ा मैं इसको और सिंपल करके आपको ऐसे बता देता हूं। ठीक है, पक्का? ठीक है, अब देखो, ये जो जितना भी जीएसटी का पूरा कॉन्सेप्ट है, पूरा जितना जीएसटी कॉन्सेप्ट है, इसको हमें पहले बहुत प्यार से समझने की, जीएसटी होता क्या है। ठीक है, let us first try to understand how GST is executed. इसके लिए हम बेसिकली क्या कह रहे हैं कि सेंटर है और स्टेट्स हैं। ठीक है, स्टेट्स का अपना रेवेन्यू है, सेंटर का अपना रेवेन्यू है। ठीक है, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो सेंटर और स्टेट्स के बीच में शेयर होंगी। इतनी सिंपल बात है। तो सेंटर जो है, जो स्टेट्स को देगा, वो क्या देगा? वो दो चीजें देगा। पहला, सेंट्रल रेवेन्यू भी स्टेट्स के साथ शेयर होगा, और जो स्टेट का कंबाइंड रेवेन्यू में शेयर है वो भी होगा। अब ये बात समझ में आई? अब ये बात क्लियर हुई? कुछ पैसा सेंटर का है, कुछ पैसा पैसा स्टेट्स का है। जो पैसा सेंटर का है उसमें से भी स्टेट्स का हिस्सा है, और जो दोनों का है उसमें तो स्टेट्स का हिस्सा जा रही है। तो इस बात में कभी कंफ्यूजन मत रखना कि सेंटर अपना पैसा स्टेट पे नहीं बांटता। इसलिए यहां इन्होंने लिखा है कि सेंट्रल जीएसटी भी शेयर होना है। जो सेंटर ने जीएसटी कमाया वो सेंटर की वजह से थोड़ी कमाया है, उसमें से कुछ सेंटर रखेगी और कुछ स्टेट्स के पास जाएगा। ठीक है, ओके। अब जीएसटी का कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिकली दो तरह के टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या फर्क होता है, कोई मुझे बताएगा? बेसिक डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। बेसिक डिफरेंस। अच्छा, और
ठीक है। डायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जो किसी एक पर्सन पे डायरेक्टली या उनकी इनकम पे या उनकी वेल्थ पे डायरेक्टली लगाए जाते हैं और वो सीधा गवर्नमेंट को दिए जाते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस में they are imposed on goods and services and they're collected from consumers through intermediaries। ठीक है, लाइक चैट। ओके, तो जो डायरेक्ट टैक्सेस होंगे वो जनरली प्रोग्रेसिव होंगे, मतलब हायर इनकम हायर टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर जनरली कंसिडर्ड टू बी रिग्रेसिव। क्यों? बिकॉज वहां आपकी इनकम कैसे भी है, टैक्स सबको जनरली इनडायरेक्ट टैक्स का सेम देना होता है। ठीक है, सो अ डायरेक्ट टैक्स is levied on income, on profits, on wealth of organizations, individuals, और उसका जो बर्डन है, जिसको पे टैक्स लगा है उसी को वो देना है। तो इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, जो सीधा आपकी जो लाइबिलिटी आप गवर्नमेंट को पे करते हो उसको डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स is levied on the sale or the consumption of goods and services. It is collected by an intermediary from the consumer। जिसने वो सामान बनाया और जो उस पर फाइनली टैक्स दे रहा है वो दो अलग अलग लोग होंगे। कस्टम्स ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, जीएसटी, इस तरह से। गुड, मेक सेंस। ठीक, अब जीएसटी जो है वो इन इनडायरेक्ट टैक्सेस को सबस्यूम करता है, मोस्ट ऑफ देम। ठीक है, अब ये कहानी क्या है और क्यों है इसको ध्यान से समझते हैं। ठीक है, बेसिकली जीएसटी इज नथिंग बट अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स which is indirect in nature on the supply of goods and services। Correct, which replaces many indirect taxes, not all but many। ठीक है, एक्साइज टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट वगैरह सब हट गए। ठीक, और इसकी वजह से वी आर लीडिंग टूवर्ड्स वन नेशन वन टैक्स। बेसिक कहानी ये है। ठीक है, इसके बारे में सबने सुना है, सबको आता है। ठीक, इसका जो कोर आइडिया है वो ये है कि टैक्स वुड बी कलेक्टेड एट एवरी स्टेज। एवरी स्टेज, लेकिन इसका जो फाइनल बर्डन होगा इट विल बी ऑन द फाइनल कंज्यूमर। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये फाइनल बर्डन से पहले जितने भी बिजनेसेस इन्वॉल्व रहे हैं उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा अपने परचेजेस का। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज एक बिजनेस है,
वो लेटर से रॉ मटेरियल खरीदता है, ठीक है। वो रॉ मटेरियल खरीदेगा, उस पर जीएसटी पे करेगा, करेगा कि नहीं? ये जीएसटी बिजनेस ए के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट है। उसने जिससे भी खरीदा होगा उससे वो इनपुट टैक्स लेगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब वो अपनी जीएसटी ऑब्लिगेशन में से ये पैसा माइनस करेगा। तो ये ए जो है क्या करेगा, इसमें वैल्यू ऐड करेगा, इस रॉ मटेरियल को ब्रांड करेगा, पैकेज करेगा, उसको सेल करने की कोशिश करेगा, उसको अच्छे से मैन्युफैक्चर करेगा, ऑल ऑफ दैट, ठीक है, क्लियर। एंड उसके बाद एक फाइनल प्रोडक्ट बनाएगा, उस फाइनल प्रोडक्ट को सेल करेगा, ठीक है। उसमें वो जीएसटी ऐड करेगा कि भाई इतना सेल हुआ तो इस सेल का इतना पर सेल इतना जीएसटी पड़ता है, करेक्ट और नॉट? ये जो बिजनेस है, ये जो बिजनेस है, ये फाइनली कितना जीएसटी पे करेगा? ये आपका आउटपुट जीएसटी है, दिस इज आउटपुट जीएसटी माइनस आईटीसी। यही मतलब हुआ ना इसका, करेक्ट और नॉट? समझ आया? सपोज मैंने कॉटन मंगवाया, मैंने कॉटन मंगवाया एक कॉटन मिल से, मैंने 100 किलो कॉटन मंगवाया, कॉटन मिल से मैंने 100 किलो कॉटन मंगाया, वो कॉटन मिल का फाइनल प्रोडक्ट कॉटन है, मेरा तो फर्स्ट रॉ मटेरियल कॉटन है। तो उसने मुझे 100 किलो कॉटन पे 10,000, मतलब जो भी रेट लगाया 10,000 रुपए जीएसटी 100 किलो कॉटन पे मुझे उसको देना था, ठीक है, ओके, मैंने उसको दे दिया। लेकिन जो 10,000 रुपए जीएसटी मैंने उसको दिया है, मैं उसको भी बचा के रखूंगा, मैं उसको सेफ रखूंगा। मेरे को जो फाइनली सरकार को जीएसटी देना होगा उसमें से मैं 10,000 रुपए माइनस करूंगा। कैसे करूंगा? ऐसे करूंगा, देखो, मैंने वो कॉटन लिया, उस कॉटन को फिर मैंने अच्छे से ब्लेंड किया, डाई किया, बढ़िया एक शर्ट बना दी। अब वो शर्ट मैं बेचने जा रहा हूँ, तो अब वो शर्ट को मैं बेचने जाऊंगा तो फिर जीएसटी भी लगा के बेचना पड़ेगा। अब वो तो जीएसटी मैं कंज्यूमर से चार्ज कर रहा हूँ, मुझे जो जीएसटी देना पड़ेगा, सपोज मैंने टोटल 20,000 रुपए तक का जीएसटी मुझे आगे फाइनल प्रोडक्ट पे देना पड़ा, लेकिन मुझे फाइनली जीएसटी कितना देना पड़ेगा? मुझे फाइनली जीएसटी देना पड़ेगा 10,000। क्या ये बात समझ आई? आर वी क्लियर ऑन दिस, यस और नो? पक्का? ठीक है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि इट इज नथिंग बट इट इज ए वैल्यू एडेड टैक्स विद अ बिल्ट इन क्रेडिट चेन। इसको आप मेरे और आपके एग्जांपल से समझ लीजिए, ठीक है। आपने जो कॉस्ट खरीदा तो आपने जीएसटी दिया, अब आपका जीएसटी मेरे पास आ गया, जो मुझे हर महीने सरकार को जीएसटी देना है, वो जो आपने मुझे दिया वो मुझे देना है। अब लेकिन आपको पढ़ाने के लिए मुझे लैपटॉप लगेगा, मैं क्रोमा में गया, मैं लैपटॉप खरीद के आया, लैपटॉप पे मुझे पड़ा 10,000 रुपए, तो आपने जो मुझे जीएसटी दिया है उसमें से मैं 10,000 रुपए माइनस करके सरकार को दे दूंगा। अब बात समझ आई? अब क्लियर है? पक्का? वेरी गुड, ठीक है। तो इसको डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जिस भी स्टेट में वो कंज्यूम हो रहा है फाइनल गुड, उसका शेयर उस स्टेट को जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कोई चीज महाराष्ट्र में बनी,
लेकिन कर्नाटका में किसी को बेची गई, तो जो टैक्स रेवेन्यू है वो लार्जली कर्नाटका जहां बेची गई है वहां जाएगा, महाराष्ट्र में कम आएगा। आर वी क्लियर ऑन दिस? यस। तो जीएसटी के बेसिकली 3 मॉडल्स हैं। एक सीजीएसटी, एक एसजीएसटी और एक आपका आईजीएसटी। यस। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी इज विद इन अ स्टेट एंड आईजीएसटी इज इंटरस्टेट और इंपोर्ट्स। ठीक। एट द हार्ट ऑफ जीएसटी is a concept called income tax credit, sorry, or it is an input tax credit. ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इस मैकेनिज्म से, इस इनकम इनपुट टैक्स मैकेनिज्म से वी आर एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ टैक्स ऑन टैक्स। है कि नहीं? नहीं तो मैं वहां भी टैक्स दूं फिर यहां भी टैक्स दूं। करेक्ट? सो वो कैस्केडिंग इफेक्ट जो आप सुनते हो वो इसकी वजह से कम होता है। दूसरा, अब आपको अगर टैक्स क्रेडिट लेना है तो इनवॉइस फॉर्मल रखनी पड़ेगी, कच्चे पे काम नहीं कर सकते, तो आपको थोड़े फॉर्मल इनवॉइसेस में भी पुश मिलेगा और इससे ओवरऑल ट्रांसपेरेंसी होती है। ठीक है? क्लियर? ये समझ में आया? पक्का? Good. अब इफेक्टिवली क्या हो रहा है कि हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को एक तरह से स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं। ज्यादातर जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हमने स्टैंडर्डाइज किए हैं उससे पहले इसका ज्यादातर बेनिफिट स्टेट्स को जा रहा था। अब जब हमने इसको स्टैंडर्डाइज किया है तो सेंटर और स्टेट्स दोनों में बटेगा। तो क्या स्टेट्स को थोड़ा सा इनिशियल नुकसान होगा? यस और नो? तो उसके लिए हमें स्टेट्स को थोड़ा कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। ठीक है? क्लियर ऑन दिस? गुड। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए द होल जीएसटी इकोसिस्टम वाज बिल्ट इनटू प्लेस। यहां समझ आया? पक्का? गुड। सिंपल करके समझो, सही लगता है ना? बेसिकली हो क्या रहा है? गुड। तो अब इसका एक मेजर कंपोनेंट जीएसटी है। बेसिकली क्या हुआ है इसमें? बहुत सारे सेंट्रल और स्टेट इनडायरेक्ट टैक्सेस और ड्यूटीज को हमने मर्ज कर दिया है। गुड। सिंपल। तो जो ओरिजिनली कॉन्करेंट ज्यूरिसडिक्शन नहीं हुआ करती थी टैक्सेशन में, वो हमने एक तरह से कॉन्करेंट ज्यूरिसडिक्शन ले आए। जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम में नहीं था। यस। कैसे? सेंटर लगाएगा सीजीएसटी, स्टेट लगाएगा एसजीएसटी, सीधी सिंपल बात। और आईजीएसटी भी सेंटर ही लगाता है। इसके लिए हमें स्टेट्स को कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, जो हमने इनिशियली 5 साल के लिए बोला था, फिर हमने उसको थोड़ा टाइम तक आगे पीछे किया है। अब जो ये रेट्स होंगे कि किस पे कितना टैक्स लगेगा, ये डिसाइड करेगी जीएसटी काउंसिल। किसमें कौन जीएसटी के अंदर आएगा, कौन जीएसटी में नहीं आएगा, किस पे हम जीएसटी लगाएंगे नहीं लगाएंगे, कितने रेट पे लगाएंगे, इस तरह से।
और इस लॉ में एक एंटी प्रॉफिटियरिंग प्रोविजन भी मेंशन कर रखा है, जो अब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया डील करता है। कोई मेरे को एंटी प्रॉफिटियरिंग का मतलब बताएगा, सिंपल एक लाइन में? गुड। ठीक है, अगर, सही बात है, अगर किसी प्रोडक्ट पे जीएसटी कम होता है तो आपको प्रोडक्ट का एमआरपी भी कम करना चाहिए, है कि नहीं? आपने एमआरपी वही रखा और जीएसटी भी वही रखा, तो आपने एक तरह से एमआरपी बढ़ा दिया, राइट? इस तो इसी चीज को सॉल्व करने के लिए यू हैव द एंटी प्रॉफिटियरिंग आइडिया। ये हमारे सीजीएसटी में भी लिखा हुआ है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव समथिंग एज बिल्ट इन। आर वी क्लियर ऑन दिस? यस। तो एक नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी वाज टू बी एस्टैब्लिश्ड। उनका काम था ये देखने का, अब ये काम कंपटीशन कमीशन देखती है। आर वी क्लियर ऑन दिस? ये समझ आया पक्का? किसी को एंटी प्रॉफिटियरिंग में हल्का सा भी दिक्कत है तो बता दो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बिल्ट इन क्लॉज है। A simple built-in clause. Anti-profiteering is nothing but a legal mechanism to ensure that the benefits of tax reduction or input tax credit are passed on to consumers instead of left with the retainers or the businesses for extra profit. सीधी सिंपल बात यह है कि सपोज एक प्रोडक्ट है एक्स, उस पे था जीएसटी 18%, 100 रुपए का था, जीएसटी था 18%, तो कंज्यूमर कितना पे करेगा? 118 रुपए। अब जीएसटी हो गया 5%, तो अब कंज्यूमर को कितना पे करना चाहिए? 105 रुपए। यस और नो? 105 करना चाहिए। लेकिन ये बिजनेस वालों ने ये किया ही नहीं, इन्होंने ये किया ही नहीं। इन्होंने अभी भी 118 पे बेचा और जो ये एक्स्ट्रा था ये प्रॉफिट का मार्जिन बना के रख लिया। ठीक है, क्लियर? गुड। इसको हम कहते हैं एंटी प्रॉफिटेरिंग, कि ये हम नहीं होने देंगे। और इसको इंप्लीमेंट करने के लिए वी हैड द 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2016, जिसमें हमने आर्टिकल 246 ए इसको इंट्रोड्यूस किया और कहा कि हाँ भाई, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स कैन मेक देयर ओन रिस्पेक्टिव जीएसटी लॉज एंड पार्लियामेंट विल मेक द लॉ फॉर सीजीएसटी एंड आईजीएसटी। हर एक स्टेट अपने हिसाब से लॉ बनाएगा। हर फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र जीएसटी एक्ट महाराष्ट्र गवर्नमेंट बनेगी, इसके बेसिस में आपने बनाया सीजीएसटी 2070, आईजीएसटी 2070, एंड बाकी स्टेट्स ने अपने अपने हिसाब से बनाए। अब यूटीज का भी सेंटर के पास है, तो यूटी जीएसटी भी सेंटर नहीं बनाया, पार्लियामेंट ने ही बनाया। ठीक है, यस। नाउ यू हैव व्हाट इज कॉल्ड अ जीएसटी कंपनसेशन एक्ट।
इस जीएसटी कॉम्पनसेशन एक्ट को भी सेंटर ने इंट्रोड्यूस करा, सेंटर ने इसको पास करा, सिंपली बिकॉज यू वांटेड टू क्रिएट अ मैकेनिज्म फॉर डिलीवरिंग कॉम्पनसेशन टू द स्टेट्स। अब इसमें कोविड भी आया और भी लॉस ऑफ रेवेन्यू था, तो बहुत सारी चीजें थी। इसके अलावा एक जीएसटीएन पोर्टल, Goods and Services Tax Network, which is a non-profit non-governmental entity. It was set up as a private limited company under the Companies Act. ये सिंपली एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसपे आप अपने जीएसटी पेमेंट्स कर सकते हो। ठीक है, क्लियर? और ओरिजिनली उन्होंने 4 जीएसटी के स्लैब्स रखे, 5%, 12%, 18%, 28%। ठीक है, और कौन कौन से यूनियन टैक्सेस मर्ज करें? सेंट्रल एक्साइज, सर्विस टैक्स, सरचार्ज, सेस। स्टेट्स में क्या क्या करें? स्टेट वैट, स्टेट सेल्स टैक्स, परचेज टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स, टैक्स ऑन लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, इस तरह से। हालांकि अल्कोहल अभी तक नहीं करा है। अल्कोहल इज नॉट अंडर जीएसटी, इसलिए स्टेट्स में अलग अलग जगहों पे अल्कोहल के अलग अलग रेट्स हैं, और इस पे भी काफी डिमांड है कि करना चाहिए। स्टेट्स कहते हैं अगर हमने ये कर लिया तो हमको जो बचा कुचा ढंग का रेवेन्यू आ रहा है वो भी चला जाएगा। बेसिक कहानी उनकी इतनी, यहां तक ठीक है। अब इस साल आपको याद होगा थोड़े से कुछ रिफॉर्म्स आए, यस और नो? जीएसटी को लेके थोड़े बहुत रिफॉर्म्स आए कि नहीं आए? यस। तो जीएसटी 2.0 जिसको हम कहते हैं, उसमें एक्चुअली क्या रिफॉर्म्स लेके आए, या उसको या उसको हम जीएसटी रिफ्रेश, जीएसटी 2.0, न्यू जीएसटी, जो भी बोलना है बोल लो। ठीक, बेसिकली 2 तरह के इंपैक्ट्स हैं। वेरी गुड संकेत, 2 काइंड्स ऑफ इंपैक्ट्स। फर्स्ट इज रेट रैशनलाइजेशन, एंड सेकंड इज जिस तरह से आप इसको इंप्लीमेंट कर रहे हो, इसको किस तरह से आप अप्लाई इन्फोर्स कर रहे हो। जहां तक रेट रैशनलाइजेशन की बात है, टू थिंग्स। फर्स्ट, एक सिंपलर रेट डिजाइन कर लिया है, 5% और 18%, और खासकर कुछ सिलेक्ट सिन गुड्स या लग्जरी गुड्स के लिए 40% लगेगा। बहुत सारी जो एवरीडे रेट आइटम्स हैं उनमें या तो ना के बराबर जीएसटी है या बहुत कम है। सेवरल पैकेज फूड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, सीमेंट, लाइफ सेविंग ड्रग्स, कुछ एफएमसीजी सेक्टर की गुड्स, उस तरह से। ये भी रेकमेंड किया गया है कि लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज जो इंडिविजुअल की होती उसको भी आप जीएसटी में एग्जेम्पशन के लिए कंसिडर करो। ठीक है, क्लियर? ओके। दूसरा, जो एक जीएसटीएटी हम बनाना चाह रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज अपेलेट ट्रिब्यूनल, उसको हमें इमीडिएटली जितना हो सके ऑपरेशनलाइज करना पड़ेगा, और एक नेशनल अथॉरिटी, प्रिंसिपल बेंच बिठाएंगे फॉर मोर कॉम्प्लिकेटेड, मोर इंटरप्रिटेटिव रूलिंग्स। ठीक है। दूसरा, इसमें रिफंड्स हमें थोड़े और फास्टर करने, ताकि लोगों का पैसा अटका ना रहे। तीसरा, जैसे हम इनकम टैक्स में कई बार नहीं बोलते अच्छा गलती हो गई, पैसा नहीं दिया, कोई बात नहीं, दे देना, तो जीएसटी के लिए भी ऐसी हम एक एमनेस्टी स्कीम लेके आएंगे कि अगर आपसे जीएसटी मिस हो गया है, आप नहीं दे पाए हो, तो कोई बात नहीं, आप अभी दे देना। ठीक है।
तो ब्रॉडली जीएसटी 2.2 का इंपैक्ट ये है। क्या ये बात क्लियर है? यस और नो? पक्का? ठीक है, गुड। ये हमको आना चाहिए। श्योर निशिम, जो नए जीएसटी आए हैं, जो नया जीएसटी का प्रोविजन में 3-4 बहुत सिंपल बातें जो हमको एग्जाम के लिए याद रखनी। वैसे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, बट हमको एग्जाम के लिए 2-3 बातें याद रखनी। पहला, अब 5, 12, 18 और 28% नहीं होगा, अब सिर्फ 5% और 8% का स्लैब होगा। जो लग्जरी गुड्स या जो सिम गुड्स होंगे जैसे टबैको वगैरह, उस पर हम एडिशनल 40% टैक्स लगाएंगे। दूसरा, एक स्पेशलाइज्ड जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल बनेगा, जिसकी एक नेशनल अथॉरिटी प्रिंसिपल बेंच दिल्ली में बैठेगी, जो बेसिकली जीएसटी रिलेटेड डिस्प्यूट्स को फास्ट ट्रैक तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेगी। तीसरा, अगर आपने जीएसटी नहीं दिया है, आपसे मिस हो गया है, तो सरकार आपको अपॉर्चुनिटी देगी कि बिना पेनल्टी दिए आप अपना जीएसटी भर लो और आगे बढ़ो, हमें कोई दिक्कत नहीं। आर वी ओके विद दिस? यहां समझ आ गया? ठीक है। इतना हमको जीएसटी को लेके अच्छे से आना चाहिए कि ए, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, दूसरा हमने ये क्यों किया, तीसरा हमने ये कैसे किया, चौथा हम इसमें भी क्या रिफॉर्म्स लेके आए हैं, एंड अभी भी हमें जीएसटी को और बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है? आर वी ओके विद दिस? यस और नो? ये जीएसटी क्लियर हो गया 100%? फेडरलिज्म तक के सारे नोट्स पोर्टल पे हैं, यस और नो? गुड, आपके लिए रीअरेंज करके हो गए। तो जीएसटी से एडवांटेज क्या होगा? एक, हमने देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा मॉडल है जीएसटी का। एक नेशनल मार्केट बना दिया आपने। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी? ये मैंने आपके नोट्स में एज इट इज डाल के रखा है। पहला, आपने जब मल्टीपल टैक्सेस को एक जैसा बना दिया, यूनिफाई कर दिया, तो एक सिंगल मार्केट बन गया। अब इससे टैक्स डिफरेंशिएशन नहीं है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बेटर होगा। दूसरा, टैक्स पर टैक्स नहीं लग रहा, कैस्केडिंग टैक्सेस कम हो रहे हैं, तो उससे टैक्स बर्डन कम हो रहा है। तीसरा, जीएसटी इज अ डिजिटल फर्स्ट अप्रोच। जीएसटी इज अ डिजिटल फर्स्ट अप्रोच, कि मैं पहले आप सब कुछ ऑनलाइन होना चाहिए, so they're going to create, it's going to create more transparency, right? अब ज्यादा चीजों को अब यूनिफॉर्मली टैक्स कर रहे हैं, सो इसके रेवेन्यू इंप्लीकेशंस भी बेहतर होंगे, यस और नो? पक्का? गुड। और इससे रिलेटेड इश्यूज भी हैं, हर एक को तो टेक्नोलॉजी नहीं आती ना। दूसरा, पैंडेमिक के बाद भी तो रेवेन्यू कलेक्शन बहुत ज्यादा डिप हुआ है, तो स्टेट्स आर ऑलरेडी स्ट्रगलिंग। तीसरा, माना कि आपने टेक्नोलॉजिकली कर दिया इनेबल, लेकिन ये इतना स्मूथ नहीं है यूज करने के लिए। स्टेट्स को कंसर्न है कि भाई हमारा पैसा जितना बनना चाहिए उतना नहीं बन रहा, और क्योंकि ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, सो वी हैव टू बी लिटिल केयरफुल अबाउट इट, यस और नो? महाराष्ट्र में सारा प्रोडक्शन हुआ, लेकिन टैक्स मोस्टली कर्नाटका को जा रहा है, क्योंकि यस, क्योंकि गुड्स कर्नाटका में जा रहे हैं। एब्सोल्युटली साकेत,
जो जीएसटी कॉम्पनसेशन हमने बोला था एज 2016 एज अ बेस ईयर, ये एक तो हमने टाइम पे नहीं दिया है, कोविड की वजह से हमको बोला गया कि और दो। यस, अल्कोहल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये सब जीएसटी में नहीं आते, एंड दीज आर हैवी रेवेन्यू चर्नर्स फॉर द स्टेट्स, तो उसको भी हमें सॉल्व करना चाहिए। यस और नो, आर वी क्लियर ऑन दिस? पक्का? गुड। देखो, इफ यू लुक एट द लार्जर कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस ऑल, हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है इससे? सी, एट द एंड ऑफ इट ऑल, it has a very severe impact on fiscal federalism. सेंटर स्टेट्स क्या फाइनेंशियली प्रूडेंट तरीके से अपना काम ढंग से कर पा रहे हैं या नहीं, सारी की सारी प्रॉब्लम वहां पे है। अब सिर्फ, एंड दैट इज व्हाई इफ यू रीड द नोट ऑन फिस्कल फेडरलिज्म, ये मैंने बहुत क्लियरली डिस्कस किया है कि प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं कि हम टैक्स कैसे बांट रहे हैं, प्रॉब्लम ये भी है कि स्टेट्स को सेंटर के बनाए हुए बहुत सारे लॉज, बहुत सारी स्कीम्स इन्फोर्स करनी पड़ती हैं। क्या उसके लिए स्टेट्स को अलग से पैसे दिए जाते हैं? क्या स्टेट्स की रिसोर्स कॉस्ट को हम ध्यान रखते हैं? द आंसर इज अनफॉर्चुनेटली नो। तो इसीलिए इन चीजों को साथ में लेके चलना बहुत जरूरी है। डू वी अंडरस्टैंड दिस? These are very broad challenges, very important challenges to fiscal federalism. रेवेन्यू कम है स्टेट्स का, एक्सपेंडिचर ज्यादा है, सब स्टेट्स बराबर तो है नहीं। तीसरा, जो भी आपकी स्कीम्स होती हैं, अब सेंटर अगर उस स्कीम का पैसा दे रहा है तो सेंटर अपने हिसाब से बोलेगा ना, ये करो वो मत करो। और सेस और सरचार्जेस जो रेगुलरली हम स्टेट्स के साथ शेयर नहीं करते, दैट्स आल्सो गुड चंक। अब जो मैं पासपोर्ट का एग्जांपल देता रहता हूँ, आधा टाइम तो स्टेट की पुलिस पासपोर्ट वेरिफिकेशन में लगी हुई है, राइट? सो देयर आर सम क्लियर कट बोरोइंग रिस्ट्रिक्शंस, डेटा ट्रांसपेरेंसी इश्यूज, so somewhere we have to solve these problems. That is why your schemes have to be rationalized. जो सेंटर और स्टेट के बीच में पैसा बटना है उसे बढ़ाना पड़ेगा। स्टेट्स का जो कोर रेवेन्यू है, इंक्लूडिंग लोकल गवर्नमेंट्स, पंचायत, उनको हमें, यस, उनको हमें एम्पावर करना पड़ेगा ताकि वो और लोकली टैक्सेस ले सके। करेक्ट? फाइनेंस कमीशन will have to play a key role in the times to come. और अंधा पैसा ना सेंटर ले सकता है ना स्टेट्स, कौन कितना पैसा कैसे ले सकता है ये भी तो देखना पड़ेगा। क्लियर? समझ आया? यस और नो? Good. I'm going to keep an additional class tonight at 9. I want to discuss finance commission and local self government in the same larger lecture. चलेगा ना 9 o'clock? पक्का? I know some of you have work to get to. तो 9 o'clock चलेगा, बिकॉज मुझे वहां से फाइनेंस कमीशन को लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से जोड़ना है, एंड देन विल डिस्कस पंचायत एंड एवरीथिंग टुगेदर। वो तो खैर बहुत ही आसान है, उसमें तो कुछ नहीं है, बट पढ़ लेंगे अच्छे से। ठीक है? चार मंथ कहाँ गायब? आपने बताया ना प्रभात, वो मिस्टेक कोर्स वाला, आई गेट इट रेक्टिफाइड। वी वर सपोज्ड टू डिस्कस व्हाट एग्जैक्टली? Go Simran, I'll just check.
पॉलिटी आज खत्म हो जाएगा ना प्रशांत बेटा, कल से सोशल इशू सोशल जस्टिस पढ़ेंगे। अब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बाद क्या बचा है बताना जरा। No, sir, yesterday was no extra class. कल से थोड़ा सोशल जस्टिस गवर्नेंस करेंगे। आईआर हफ्ते भर बाद से होगा, और आईआर तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अब है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देर के नॉट बी अ बेटर टाइम टू स्टडी आईआर। मतलब आप इसको कैसे समझिए। आशीष आप मेरी बात से एग्री करेंगे, बिकॉज यू बीन अ सीनियर स्टूडेंट, आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस। जो अब एग्जाम में आएगा, जो अब मेंस के आईआर में आएगा, वो एक्चुअली अब से रेलेवेंट है। इससे पहले का आईआर इतना कुछ खास रेलेवेंट है नहीं। यस, प्रीलिम्स के नोट्स जैसे मैं देता हूँ अपडेट भी होंगे। स्टेट्स कैन नॉट बी इन्वॉल्व इन इंटरनेशनल टॉक्स, नेगोशिएशन नहीं, बट इन्वेस्टमेंट समिट्स के लिए आप ऑब्वियसली यू कैन, व्हाई नॉट। बिल्कुल बिल्कुल। आप कोई स्ट्रेटेजिक वो थोड़ी कर रहे हो, फॉरेन पॉलिसी में कुछ मेजर चेंज थोड़ी ला रहे हो। आप तो बस यही बोल रहे हो कि आओ हमारे पास, आओ हमको हमारे में इन्वेस्ट करो। ठीक है।